Good morning, Prakhar, Shreyansh. Harit. So today we have to start with the last revision of the NCERT book, and today hope so to complete that revision of the NCERT lesson. Then I am going to show you a question of 5 marks. How 5 marks question is coming from this chapter. Okay, so I'll start by after 1 minute. Good morning, Krishika. Prakhar, your result already uploaded on 25th Jan. I think principal ma'am or VP ma'am, they both might have floated the message in your class group. So you can check. It is already uploaded. Good morning, Bhumi. Prakhar, not understood. Yes, Prakhar, speak. Prakhar. मैम वो जो 10 मार्क्स का दिए थे ना, मतलब लिए थे ना, उसका रिजल्ट का बात कर रहा हूँ। कौन सा 10 मार्क्स का? मैम आप लिए थे ना, 10 मार्क्स का आप लिए थे। अभी मैं कल फोन किया था उसके लिए। 10 मार्क्स का रिजल्ट अभी आपका PT2 में? नो मैम, तो मैम अभी लिए थे ना 2-3 दिन के बाद। अरे वो तो तुम्हारे MCQs थे जब PT2 के पहले हम टेस्ट ले रहे थे, और मैंने पर्सनली तुम लोगों का कोई टेस्ट नहीं लिया है। हाँ वही जो 2-3 दिन के बाद आप लिए थे, 10 मार्क्स का 6 क्वेश्चन दिए थे आप। 10 मार्क्स का 6 क्वेश्चन 10 मार्क्स का नहीं रहा होगा, वो आपका 40 मार्क्स का जो आपने अभी टेस्ट दिया ना PT2, उसमें बायो का 40 था। हाँ बोलो। PT2 नहीं मैम, मैम वो 10 मार्क्स का था, आप बता रहे थे 6 क्वेश्चन दिए थे आप बस। तो जो फिर आपको मैं व्हाट्सएप में वो क्यों फोटो भेजा हूँ। नहीं, तो फिर वो टेस्ट नहीं है, वो टेस्ट नहीं है, वो आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने थे, वो टेस्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है वो तो उसका बताओ ना मैम। नहीं तो वो टेस्ट नहीं है ना, वो तो मैंने क्वेश्चन आंसर दिया था। ओके, तो अच्छा अच्छा भूमि, यस यस यस, वही तो मैं कब से बोल रहा हूँ। सॉरी सॉरी प्रखर, आप जो बोल रहे हो केमिस्ट्री टेस्ट के बारे में बोल रहे हो, क्योंकि मैंने अभी तक कोई ऐसा टेस्ट नहीं लिया है। आप अभी कौन सी क्लास में आए हो? आप बायोलॉजी की क्लास में आए हो, ठीक है। हाँ ये हाँ, आप भूल गए। थैंक यू भूमि। प्रखर ने तो मुझे भी कंफ्यूज कर दिया कि मैंने कभी तो टेस्ट लिया नहीं था। Okay, now the time started. I am going to share a screen about the chapter. Which we already discussed. ठीक है, ये मैंने तुमको बताया था. This just a recap of this chapter. This diagram is important for the final paper. इसकी practice करनी है आपने. Okay, then there's the cheek cell or the onion peel cell. Then I told about this box.
about the different types of scientists. This is the various human cell body structure already come in the half yearly exam. Now different types of organelles, plasma membrane is first, then osmosis, diffusion, cell wall, nucleus, cytoplasm is over, endoplasmic reticulum is over on that day. Now this is the cell organelles, this is the animal structure, animal cell structure. Here we have plasma membrane, centriole. So students, you just count the number of labelings. ठीक है? So each labeling carries 1/4 marks. तो अगर if you want to get 1 marks, then you have to write 4 labelings. मेरी बात को ध्यान से सुनना. जो आज नहीं आए हैं, that is not my problem, that they had not attended my class. If you will not get marks, that is your responsibility, or the students, those who have not attended the class, that is their responsibility. Today I am telling you, this is the board pattern which I am telling you from this time, जिससे कि 10th में आपको कोई दिक्कत ना हो. 1/4 marks for each labeling. So you just counted 1, 2, 3, 4. If you will draw 4 organelles, then you will get 1 marks. Or if the question is asked to draw only mitochondria, cytoplasm, न्यूक्लियर एनवेलप और गोल्गी apparatus, कुछ इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछता है, तब आपको सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेबलिंग करनी है, अपनी लेबलिंग नहीं डालनी है उसमें. या आपको जितना आता है आप सोचो कि आपको वो पूरी लेबलिंग डालनी है, तो आपने वैसा नहीं करना है. yes, today's topic we have to start with the cell organelle. ठीक है, मैंने आपको इस डायग्राम के बारे में बताया था. Now I'll show you. This is the plant cell. Plant cell और animal cell में the difference, you know, that is the chloroplast, cell wall. One more difference is there, that is the plasma desmata. ठीक, chloroplast तो ठीक है. And see, the plant cell is of any shape. बनाना आपको पड़ेगा, but it can be of any shape. Or animal cell, it should be in hexagonal shape. Hexagonal shape होना चाहिए इसका. ठीक है, hexagonal आपने देखा है ना, hexagonal shape होना चाहिए, 6 sides shape. और जो animal plant cell होता है वो किसी भी shape का हो सकता है, तो वो चलेगा आपको. Now we have to just read upon the Golgi apparatus. Golgi apparatus का function क्या है? तो अगर question is asked कि write 2 functions of Golgi apparatus, so you have to write the 2 functions. So just read about the Golgi apparatus. It was first described by Camillo Golgi. तो Camillo Golgi is a scientist जिनका सरनेम था गोल्गी, और उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया, उन्होंने इसको समझा, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम दे दिया गोल्गी apparatus. अब देखो ये बात तुमको नहीं पता है, ये तुमको याद भी नहीं है, बट ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है कि who described this Golgi apparatus and what is the function of this Golgi apparatus. Okay, so the Golgi apparatus first described by the Camillo Golgi consists of a system of membrane bound vesicles. अब ये बोल रहा है कि जो इसके flattened sacs होते हैं, मतलब जो चपटी प्लेट्स होती हैं, so you can see in the diagram there is Golgi apparatus. This is the Golgi apparatus. ये देखो, ये ऐसे फ्लैट प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर 2-3 लेयर में चिपकी होती हैं. तो ये चीज आपको ध्यान रखने लायक है. जो आप जैसे बहुत से लोगों को एट अ टाइम नहीं समझ में आता है कि क्या फंक्शन लिखना है, देन यू कैन लर्न द डायग्राम. सो आफ्टर इमेजिनिंग द डायग्राम यू कैन राइट द पॉइंट्स. ठीक, तो ये पता है हमको फ्लैटेंड सेक्स होते हैं एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर. तुमने अभी देखा है कि एक दूसरे से चिपके होते हैं, पैरेलल होते हैं, उनको हम बोलते हैं सिस्टर्नीज. तो Golgi apparatus combinedly and the layers are cisterns. So these membranes often have connection with the membrane of endoplasmic reticulum and therefore constitute another portion of the complex cellular membrane system. The material synthesized near the endoplasmic reticulum is packed and dispatched to various targets
inside and outside the cell through the Golgi apparatus. Its function include the storage, modification and packaging of products in the vesicle. So this is the function. तो अभी आपसे पूछा गया 2 marks में कि who discovered, okay, what is the shape of the Golgi apparatus, what is the function of Golgi apparatus. Now students, this time you will get the inside question, not the outside or backside question of NCERT. So be remembered. ऐसे ये मत सोचना कि ये पीछे का क्वेश्चन नहीं आया मैम, हम तो पीछे का पूरा पढ़े थे, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक। मैं इसलिए तुमको अभी पूरे चैप्टर वाइज समझा रही हूँ, मैं बार बार यही बोलूंगी कि अब चैप्टर के इनसाइड से क्वेश्चन आएगा। So its function include the storage, modification and packaging of the products. तो ये क्या करता है, स्टोर भी करता है, उसको मॉडिफाई भी करता है और पैकेजिंग भी करता है। In some cases, complex sugar may be made from simple sugar in the Golgi apparatus. तो आपके सामने 3 functions हैं। First functions, it includes modification, packaging and storage of the vesicles. It converts complex sugar into simpler sugar. Then third, the Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes. ठीक, अब the lysosomes damaged, lysosomes may burst and the enzyme digest their own cells. तो जो एंजाइम होते हैं, जब देखते हैं लाइजोसोम अंदर खराब हो चुका है तो वो खुद ही उसको खा लेते हैं, इसलिए लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। अभी आपके सामने ये क्वेश्चन आया हुआ था। यस हरित, यस हरित। मैम आप लाइजोसोम नहीं पढ़ा है, ऊपर में जो है। सॉरी हरित, फिर से बोलना। आप लाइजोसोम नहीं पढ़ा है मैम। हाँ, लाइजोसोम्स में जा रही हूँ ना मैं, रुको। ओके, दिस साइड इज द लाइजोसोम्स। ओके, सो अब तुमको पता है लाइजोसोम्स क्या करता है, द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। नाउ द लाइजोसोम, दिस इज द पिक्चर ऑफ कैमिलो गोल्गी। ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे कि इन विच ईयर ही बोर्न, इन विच ईयर ही डिस्कवर्ड और डिस्क्राइब। ये सारे क्वेश्चंस डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10th के 9th के पेपर्स में ये नहीं पूछा जाता। ओके, सो नाउ द लाइजोसोम्स। स्ट्रक्चरली लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स filled with digestive enzymes and these enzymes are made of RER। तो ये सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो RER के बने होते हैं और इनके अंदर क्या होता है, सारे एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं। लाइजोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। अब आपके सामने क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी आपको इधर बताया लास्ट में कि व्हाई लाइजोसोम्स आर द सुसाइडल बैग्स, ठीक, ये हमने पढ़ा है, ये मैंने अभी आपको एग्जाम में भी दिया था, व्हाई इट इज कॉल्ड सो। तो सुसाइडल बैग इसलिए क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम अपने अंदर भर के रखता है, ठीक। अगर ये क्वेश्चन, इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन 3 मार्क्स, ठीक है, अभी दिस टाइम यू हैव गॉट दिस क्वेश्चन इन 2 मार्क्स, माइट बी इट विल बी कमिंग इन 3 मार्क्स। तो सबसे पहले, एंड इन 3 मार्क्स यू हैव टू राइट 6 पॉइंट। रिमेंबर ईच पॉइंट इज ऑफ हाफ मार्क्स। अपने दिमाग से इस बात को अलग कर दो कि हम 1 पॉइंट लिखेंगे तो हमको 1 मार्क्स मिल जाएगा। You will only get 1 marks in case of elaborating the same point। अगर आपने उस पॉइंट को, आप उसके बारे में कुछ जानते हैं और उसको थोड़ा बढ़ा रहे हैं, उसमें कुछ पॉइंट, यूजफुल पॉइंट लिख रहे हैं, देन ओनली यू विल गेट 1 मार्क्स, अदरवाइज हाफ मार्क्स ईच पॉइंट। तो कभी भी क्वेश्चन आए तो ये रखो आप ध्यान में कि जो क्वेश्चन 5 मार्क्स में दिया रहता है उसको किस हिसाब से लिखना है, 3 मार्क्स में दिया है तो पॉइंट्स में कैसे लिखना है। नो नीड टू राइट इन पैराग्राफ, कोई नहीं पढ़ने वाला पैराग्राफ, ओनली द पॉइंट्स। तो ये हो गया, लाइजोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। These help to keep the cell clean by digesting any foreign materials as well as worn out cell organelles। ठीक है, तो आपके सामने ये 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको आप अंडरलाइन कर सकते हो कि they carry the digestive system, digestive enzymes which are made up of RER
and they help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as the ruptured cells, organelles. Foreign material entering the cell such as bacteria or food as well as old organelles end up in the lysosomes, which breaks complex substances into simpler substances. तो ये लाइसोसोम का काम होता है कि वो तोड़कर उन सब्सटेंस को छोटा करता है and are able to do this because they contain the powerful digestive enzyme capable of breaking down all the organic materials. During the disturbance in cellular metabolism, for example, when the cell gets damaged, lysosomes may burst and the lysos and the enzyme digest their own cell. ये तो मैंने अभी तुमको by mistake समझा दिया था, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ समझने की जरूरत है. ठीक है, तो ये है लाइसोसोम. अगर आपके सामने ये 3 मार्क्स में आता है, then you have to write in 3 मार्क्स. क्या लिखोगे सबसे पहले कि they carry digestive enzymes which are made in RER, then they digest and clean the cell. Okay, you can write they are able to digest. ये तो इसको आप elaborate कर सकते हो. Powerful enzymes जो आपने first में लिखना होता है, capable of breaking down of all organic materials, and in one point you can write the shape of the lysosomes कि वो कैसा होता है और वो क्या कैरी करता है. तो ये आपके 3 पॉइंट्स बन सकते हैं. इसको आप थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने तुमको ये डाइजेस्टिव एंजाइम में बताया. इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग. क्यों? क्योंकि दे जस्ट ईट आउट ऑल द डैमेज्ड सेल. ठीक, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया 8th में भी पढ़ा है तुमने, पावर हाउस ऑफ द सेल. अब पावर हाउस बोलते हैं तो ये क्या होता है? They have 2 membranes covering. The outer membrane is porous while the inner membrane is deeply folded. These folds increase the surface area of ATP. ATP means adenosine triphosphate. Shreyansh, RER is rough endoplasmic reticulum and SER is smooth endoplasmic reticulum. ये हम जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लास्ट क्लास में पढ़े थे, तब उसमें मैंने तुम लोगों को समझाया था उसके फंक्शंस कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है. Okay. So what is the why we are calling माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस क्यों बोलते हैं? तो the energy required for the various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP molecules. ठीक, ATP is known as the energy currency of the cell. The body uses energy stored in ATP for making new chemical compounds and for mechanical work. So this ATP triphosphate जब हमारी बॉडी काम करती है, हम एनर्जी हमारी लगती है, तो जो सेल में एनर्जी बनता है वो एनर्जी ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है. तो ADP कन्वर्ट्स इनटू ATP कन्वर्ट्स इनटू ADP. ठीक है, तो इस why the mitochondria is known as the powerhouse of the cell, because it carries the energy for the function of various chemical activities for the life process, and the energy just get converted. This energy is known as ATP, which is get converted into ADP. It is not written in the book, but you can add अगर तुमको याद रहता है तो. And the body uses energy stored in ATP for making new chemical compounds. ये आप लिख सकते हो. This question is of 2 marks. ठीक, Any doubt? किसी को कुछ बोलना है? You can raise hand or you can write in chat. Any doubt? Better you write in chat. No doubt. I am waiting. किसी को कुछ लिखना है? Students, any doubt? Okay, Khushi. ADP is adenosine diphosphate. ATP is adenosine triphosphate. When
एनर्जी ब्रेक्स डाउन, दिस एनर्जी ब्रेक्स डाउन, ये जब टूटती है, हम जब काम करते हैं, हम जब दौड़ते हैं, हम जब चलते हैं, तो ये जब एनर्जी टूटती है, देन इट ब्रेक्स इनटू एडीपी। तो ये आपके सामने जो ये पॉइंट दिया हुआ है, द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल्स, सो द दिस एनर्जी इज यूज्ड टू कन्वर्ट इनटू एडीपी। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट गेट कन्वर्टेड इनटू एडीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर द यूज ऑफ मैकेनिकल वर्क। हम कुछ काम कर रहे हैं, थक रहे हैं, दौड़ रहे हैं, स्पोर्ट्स में हो रहा है, तो इसलिए mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosomes. Therefore, mitochondria are able to make some of their own proteins. So this is a interesting and amazing facts for you. हम अभी तक क्या पढ़ते आए हैं, इस पॉइंट को याद रखना कि आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सेप्ट न्यूक्लियस which organelle carries DNA और which organelle carries ribosomes। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि except this nucleus, this mitochondria is having the DNA and the ribosomes। And move on to the plastids। Plastids, this is a very familiar topic। plastids सबको पता है, प्लांट्स में होता है, टाइप्स भी पता होता है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्योंकि क्रोमो मतलब होता है ग्रीन, सो कलर्ड प्लास्टिड। ल्यूको, ल्यूको इज व्हाइट और ट्रांसपेरेंट और कलरलेस, हम उसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। they contain the pigments chlorophyll are known as the chloroplast and the chloroplasts are important for the photosynthesis in plants। मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक में मुझे कुछ समझाने की जरूरत है आप लोगों को। इज इट वेरी क्लियर? द पॉइंट्स आर वेरी क्लियर कि प्लास्टिड्स जो होते हैं दैट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज क्रोमो, क्रोमो मतलब ग्रीन कलर, क्रोमो मींस क्रोमो इटसेल्फ मींस ग्रीन और कलर्ड पिगमेंट। ल्यूको मींस व्हाइट और ट्रांसपेरेंट और कलरलेस बोल दो आप। This chromoplast is containing the chloroplast। Chloroplast का क्या function होता है? You know very well, they contains various yellow or orange pigments in the addition to chlorophyll। Yes, Shreyansh? मैं क्वेश्चन मैम मैं अपनी स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो मैम एक बार बताओ क्या। बेटा थोड़ा तेज बोलिए, मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया, थोड़ा तेज। एक क्वेश्चन है मैम, मैं उसको मैं अपनी स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप एक बार बता देना। डिवीजन, ओके ठीक है मैम सी। हाँ हाँ हाँ, सेल डिवीजन ना आपने क्वेश्चन किया है श्रेयांश, व्हाट इज सेल डिवीजन? सेल डिवीजन मतलब ये होता है वन सेल डिवाइड्स इनटू टू सेल, दैट इज द सेल डिवीजन। ठीक, एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स। अभी मैं वहां नहीं पहुंची हूँ, मैं ये तुमको समझा दूंगी, पहले उसके पहले हम ये कर लेते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट हो गया। ल्यूकोप्लास्ट, अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये आपको बता रहा है 1 मार्क, 2 मार्क एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन। 5 मार्क्स क्वेश्चन आई एम हैविंग इन माय स्लाइड्स, वो मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन आप 1, 2 और 3 के लिए रेडी रहिए। Leucoplasts are the primary, okay, Shreyansh, are the primarily organelles in which the materials such as starch, oil, protein granules are stored. So this complete paragraph is very important and it all contains the good points to write in 3 marks question if the questions related to plastids will come. तो आपके लिए ये सबसे अच्छा पॉइंट है। The internal organization of the chloroplast consists of the numerous membranes. These membranes are layered, एक दूसरे से ब्रेड के जैसे लेयर्ड के फॉर्म में रहती है, इनको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, and these are similar to mitochondria in the external structure. Like the mitochondria, plastids also have their own DNA and ribosomes. तो आपके सामने सेकेंड पॉइंट ये आ गया कि which organelle या what are the different organelles present in the cell contains ribosomes, DNA or ribosomes
except this nucleus, या फिर nucleus doesn't contain the ribosomes, only DNA what will come. nucleus के अंदर सिर्फ DNA consist होता है, तो DNA plastids में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, राइबोसोम्स नहीं होता उनमें. तो अब आप ये आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है, then you have to write the two names, mitochondria and the plastids. ठीक है. Now the vacuoles. So here we have two topic. One is the vacuoles. Vacuoles are the storage sac. Vacuoles बहुत अच्छे से जानते हो, सबसे बड़ा होता है प्लांट्स में, और मिनिमम साइज और लैगिंग साइज जो होता है that is present in animals. So vacuoles are small sized in animals while plant have a very large vacuoles. ये मैंने आपको बताया था. Due to the vacuoles, due to the size of the vacuoles, the plant cell have a definite shape. कोई एक shape नहीं होता, undefinite shape होता है उसका. So 50 to 90% of the cell volume it contains. In plant cell, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. Vacuoles क्योंकि उसको strict बिल्कुल बहुत ज़्यादा hard बनाता है. Many substances of importance in the life of the plant cell are stored in vacuoles. These include amino acids, sugar, various organic acids, and some proteins. तो what vacuoles contain? तो ये तो सबको पता है कि vacuoles का साइज क्या है, vacuoles कैसा प्रेजेंट होता है प्लांट में, कैसा प्रेजेंट होता है एनिमल में. But what is the major part of vacuole? So the substance of importance in the life of plant cell are stored in vacuoles. These include amino acids, sugar, various organic acids, and some proteins in the single-celled organism like amoeba. Amoeba आपको पता है binary fission करता है. उसका जो एक unicellular organism है, it contains binary fission. Binary fission means it has two daughter cells. If the mother cell get crossed over, then it will be of two daughter cells. ठीक है. ये अमीबा के अंदर क्योंकि वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, और ये वैक्यूल क्या करता है, स्यूडोपोडिया, बिकॉज ऑफ द स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स लेग ऑफ अमीबा, ये वैक्यूल्स के थ्रू अपने खाने को पूरा अंदर निगल लेता है. तो इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल. तो ये आपके पास एक 1 मार्क क्वेश्चन आ गया. व्हिच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव वैक्यूल? So the answer is only amoeba or amoeba. Each cell thus acquires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in specific way. The cell does have a basic structural organization. This helps the cell to perform functions like respiration, obtaining nutrition, clearing of waste materials, forming new proteins. The cell is the fundamental. ये आपके सामने क्वेश्चन आता है. Why the cell is known as the fundamental, structural and the basic unit of life? First fundamental, क्योंकि हम जानते हैं cell is a basic unit of life. तो cell एक ऐसा पार्ट है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से एक बच्चा 9 months के अंदर मल्टी सेलुलर फीटस बनता है. ठीक, ये हो गया बेसिक. The fundamental means we have different cell structure in different organs. हार्ट का मैंने उस दिन तुमसे डिस्कस किया था कि हार्ट का सेल अलग होता है, लंग्स का सेल अलग होता है, तो सबका अलग अलग फंक्शन है. तो फंडामेंटल फंक्शन हमारी बॉडी का अलग है. एंड द स्ट्रक्चरल क्योंकि हमारी बॉडी में एक स्ट्रक्चर है. सबके हार्ट का शेप एक जैसा है, सारे ह्यूमन बींग्स के हार्ट का शेप एक जैसा है, सबके लंग्स का शेप एक जैसा है, सबके स्टमक का शेप एक जैसा है. तो इट गिव्स यू द स्ट्रक्चरल यूनिट. प्लांट्स में ऐसा नहीं होता. प्लांट्स के अंदर इस तरह का सिस्टम नहीं है. प्लांट सिर्फ एक ही प्रोसेस करता है, वो होता है रेस्पिरेशन. ठीक, न्यूट्रिशन वो वाटर से ले लेता है, वेस्ट मटेरियल वो अपने गम से निकाल देता है. तो उसको इतना ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती. इसलिए उसका वैक्यूल जैसा भी होगा, बड़ा होगा, साइड में होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, उसका शेप टेढ़ा होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. बट हमारे सेल को प्रॉपर होने की जरूरत है, तभी हमारी बॉडी में एक शेप आएगा. Now the last topic is cell division. This is the cell division. This is mitosis.
माइटोसिस क्या होता है, इसमें मदर सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल। और मियोसिस में क्या होता है, दिस मियोसिस डिवीजन मदर सेल डिवाइड्स इनटू 2, और जो फर्दर डिवीजन होता है दैट डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल। ठीक, सो दिस इज द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम्स अलग हो गए हैं, इसलिए ये माइटोसिस है। यहाँ पर इन क्रोमोसोम्स में माइटोसिस डिवीजन के बाद जो डिवीजन होता है दैट इज द मियोसिस डिवीजन। आप आगे क्लासेस में और पढ़ेंगे कि मियोसिस डिवीजन 1 एंड मियोसिस डिवीजन 2 क्या होता है। ठीक, तो अभी श्रेयांश आपका क्वेश्चन था सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन मतलब ये होता है एक मदर सेल जब डॉटर सेल मतलब वो दो अलग अलग सेल को बनाती है तो दैट इज नोन एज द सेल डिवीजन। ठीक, जब आप अपनी मम्मी के पेट में आए थे तो आप सिर्फ 1 सेल के थे, एक मुर्गी के अंडे जितना। उस मुर्गी के अंडे से अगर एक 9 मंथ के अंदर एक फीटस बनता है, एक छोटा बच्चा बनता है, दैट इज द सेल डिवीजन। और उसमें जो सेल डिवीजन होता है दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। ओके, तो माइटोसिस द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय व्हिच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड बाय ग्रोथ। ठीक, उसकी ग्रोथ होती है। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल, हर सेल को मदर सेल बोला जाता है, divides to form 2 identical daughter cells. The daughter cell have the same number of chromosomes as the mother cell and it helps in growth and repair of the tissues in the organism. तो धीरे धीरे जब सेल मल्टीप्लाई होगा तो जो एक मुर्गी का अंडा है उसमें अंदर सबसे पहले बनेगा हार्ट। तो कोई भी बच्चा जब अपनी मम्मी के पेट में आता है तो सबसे पहले बनता है उसका हार्ट। हार्ट इसलिए बनता है जिससे कि वो पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई दे सके। जब तक ब्लड पूरी बॉडी में नहीं आएगा तो उसका लिम्स कैसे बनेंगे, उसका लंग्स कैसे बनेगा, क्योंकि अंदर लंग्स प्रॉपरली डेवलप होने में 5 to 6 मंथ बनते हैं, जिसकी वजह से वो मम्मी के साथ जो जुड़ा रहता है वो कनेक्शन के थ्रू उसको ऑक्सीजन मिलता है मम्मी से। और इसी तरीके से हम भी पैदा हुए हैं, आप लोग भी हुए हो, तो ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यूज इन द ऑर्गेनिज्म। Specific cell of reproductive organs or the tissue in animals and the plants divide to form gametes. अब जो मैंने आपको बताया गैमीट्स, हमारी बॉडी के अंदर जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं, एक क्रोमोसोम को हम बोलते हैं गैमीट। और ये जब 2 क्रोमोसोम हो जाते हैं, जैसे गर्ल्स के अंदर 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, आपने 8th में पढ़ा है XX, और बॉयज के अंदर XY, तो ये दोनों क्रोमोसोम्स जब होते हैं तो इनको हम बोलते हैं जाइगोट। तो each chromosome known as gamete or a pair of chromosome known as zygote। तो ये गैमीट्स क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जब होता है X और Y क्रोमोसोम्स के बीच में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ऑफस्प्रिंग आता है, उसमें फिर डिवीजन शुरू होता है मियोसिस का। ठीक है, विच इन्वॉल्व्स 2 कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन, एक होता है मियोसिस 1 और एक होता है मियोसिस 2। इस डिवीजन के थ्रू बच्चे के अंदर अलग अलग सेल बनना शुरू होते हैं, वो सेल अलग अलग ऑर्गन के लिए बनते हैं जो कि टिश्यूज में बनना शुरू होते हैं। ठीक है, सो व्हेन अ सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल इंस्टेड ऑफ जस्ट 2, सो हियर इज अ 4। The new cells only have the half the number of chromosomes than that of the mother cell. Can you think as why the chromosome numbers are reduced to half in daughter cells? क्योंकि यहाँ पर इनमें आगे क्रॉसिंग होना अभी बाकी होता है, जो कि मियोसिस 1 में शुरू होता है। That's why the daughter cell is having half chromosomes. So you have only 3 minutes left. अब आप मुझे बताइए, एनी डाउट यू कैन आस्क tomorrow when I am having period. Tomorrow I am having period, I think, in your class. Is that right? Tomorrow I will show you a question on this. Any doubt? No beta, tomorrow I will show you the 5 marks question. इसमें हम 5 marks की question देखेंगे कि कैसा question आता है। Any doubt students? आप पूछ सकते हैं।
Anyone? Okay, so it is clear for everyone. I had shown you the whole lesson. In that I had told you the topics which are important for the final paper. अब this time you will get the question from here. Back side वाला part पूरा खत्म हो गया, बहुत आ गया उसमें से. Okay, I hope no doubt. So you have 1 minute. Any doubt you can ask. I am waiting. You can raise hand. Okay, thank you for attending the class. Have a great day.